I hope you all are preparing very well for your board exam. The reason behind this, I'm preparing the content so that you can revise your class 11th concept very easily for your April session, right? So in this session, I will discuss the circle questions, and in analysis, I have given that in the January session there were almost 9 questions. I think the questions, how many questions I can solve, as a it will take a long time in solving the questions. Correct. So the first question is x square plus y square is equal to 4. So this is the equation of a circle in which center is origin and the radius is 2. Very simple. So I'm just drawing the diagram here. This is the circle, center origin, radius 2. Correct. So point of intersection on the x axis. So x axis पे आपको point दिया है a and b, and a is positive, b is negative. So I'm taking here 2,0, and this point will become definitely minus 2,0. Right. After that, they are saying the point P, 2 cos alpha, 2 sin alpha. This is nothing but the parametric form of a circle. That means this point and Q point both lie on the circumference of the circle itself, right? So I'm just writing the points P and Q here. So the point P is 2 cos alpha, 2 sin alpha. 2 cos alpha, 2 sin alpha, right? And the Q point is 2 cos beta, 2 sine beta. So what they are asking about the point of intersection of AQ and BP, right? So I will just draw here AQ and this is BP, right? So this is the point of intersection M. And they are asking the point of intersection of AQ and BP lies on which, right? So these are the equations of circle also, but हमें ये बताना है कि आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो किस पे लाई करेगा, राइट? तो एक तरीके से you need to find the locus of the point of intersection. So whenever we find the locus, the first step is we just take it as h comma k. After that we try to find the equation in h comma k and we replace it with x and y finally, right? So I'm taking the point coordinate as h comma k, right? So how we can find the equation of or relation between h comma k? So the thing is given alpha minus beta is pi by 2. So somewhat I will use the trigonometry, because before solving the question you must have something in your mind how you can find the answer. So if you are not going in the proper way, then definitely you will waste your time and you will not get the answer also. So it's very, very important that what method you are approaching, right? Then this is given that alpha minus beta is pi by 2. So what I will do, I will just find the slope of this line and it will equate the slope with this, right? So as it is the same line, so slopes will be equal. And same I will do for this line also. It is same line and slope will also be the same, right? So I'm just writing the slopes and I will equate it. Correct? So हमें दो lines के लिए करना है, तो I will just dividing it in 2 parts. You can do it separately. So I'm just writing the slope, and we all know the formula of the slope, y2 minus y1 upon x2 minus x1, right? We know it in the straight line. So I'm just writing the slope of BP. Slope of BP will be equal to the slope of BM, if I'm taking as point M. Slope of BM, correct? So slope of BP, I'm simply writing y2 minus y1 upon x2 minus x1, it will become 2 sine alpha upon 2 cos alpha plus 2. 2 cos alpha plus 2. And for the BM, it will become y2 minus y1 upon x2 minus x1. This is h comma k. So it will become k upon h plus 2. It will become k upon h plus 2. Correct? So if you will divide this by 2, you will get sine alpha upon cos alpha plus 1. And we will use a little trigonometry here. Sine alpha ko you can write 2 sine alpha by 2 cos alpha by 2 in the half angle formula, right? So I will write it directly. 2 मैंने इसको divide कर दिया common लेके. After that sine alpha को you can write 2 sine alpha by 2 cos alpha by 2, right? And cos alpha plus 1. Cos alpha plus 1 को you can write 2 cos square alpha by 2, right?
So I'm just writing it here, 2 cos square alpha by 2, and this is k upon h plus 2. So 2 and 2 will get cancelled out. Cos alpha by 2 will get cancelled out with this cos alpha by 2. The sine upon cos, it will become tan alpha by 2. So tan alpha by 2 is equal to k upon h plus 2. So this is my first equation, right? After that, I will find the slope for the second one. So I'm just changing the pen. So for the second one, I will just write the slope of this AQ. The slope of AQ is equal to the slope of AM. Slope of AM, right? तो AQ का slope क्या हो जाएगा? Again y2 minus y1 upon x2 minus x1. That means 2 sin beta minus 0 upon 2 cos beta minus 2. Right? And slope of AM, if I write the slope of the AM, then k minus 0, that means k upon h minus 2. Right? So 2 again आप कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो. Again you will use the trigonometry. Sin beta को you can write 2 sin beta by 2 cos beta by 2 and cos beta minus 1. If I take minus as common, it will become 1 minus cos beta, right? I'm taking minus as common, and 1 minus cos beta को आप लिख सकते हो 2 sin square beta by 2, right? So it will become 2 sin square beta by 2 is equal to k upon h minus 2. So 2 and 2 will get cancelled out, and this sin beta by 2 and sin beta by 2 will get cancelled out, and this cos upon sin will become cot. So it will become minus cot beta by 2. I'm writing it here. Minus cot beta by 2 is equal to k upon h minus 2, right? So this is the second thing. After that, I will use this equation, alpha minus beta is equal to pi by 2. Since it is given it alpha and beta, I will divide it by 2 to get the half angle, right? So if I'll divide it by 2, I will get alpha by 2 minus beta by 2 is equal to pi by 4, right? But I'll get alpha by 2 minus beta by 2 is equal to pi by 4. Taking tan both sides. तो इफ आई टेक tan, तो tan लेने का फायदा क्या होता है ना कि हमने tan में वैल्यूज निकाल रखी है, और अगर यहाँ tan a माइनस b की आइडेंटिटी बहुत आसानी से लगा सकते हो, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, राइट? सो आई एम डायरेक्टली राइटिंग हियर tan अल्फा बाई 2 की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दे रही हूँ tan a, तो इट विल बिकम फ्रॉम हियर इट विल बिकम k अपॉन h प्लस 2 tan a minus tan b. So tan b is not here, but I'm writing because हमने cot निकाला है, cot का reciprocal ही tan होता है, तो इसको just reciprocal करोगे, it will become h minus 2 upon k, और हमें minus का tan beta by 2 लिखना है, so minus minus will become plus, correct? तो tan a minus tan beta by 2, अब हमें minus tan beta by 2 की वैल्यू है, तो minus tan beta by 2 की जो वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी k upon h plus 2. k upon h minus 2. नहीं रेसिप्रोकल करोगे ना, इट विल बिकम h minus 2 upon k, राइट? बिकॉज दिस इज cot, राइट? तो आप cot का रेसिप्रोकल करोगे देन यू विल गेट द 10. तो इसका रेसिप्रोकल करोगे इट विल बिकम h minus 2 upon k, राइट? h minus 2 upon k. So this is tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b, right? 1 प्लस tan a की वैल्यू है k अपॉन h प्लस 2, एंड इसकी वैल्यू है हमारे पास माइनस का tan की वैल्यू क्या है, अब मैं इसको 2 माइनस h लिख देती हूँ रेसिप्रोकल करके, तो इट विल बिकम tan बीटा बाई 2. तो tan बीटा बाई 2 की जो वैल्यू हो जाएगी मेरे पास क्या हो जाएगी, tan a इंटू tan बीटा बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास h माइनस 2 अपॉन k, और h माइनस 2 को मैं 2 माइनस h लिख दे रही हूँ क्योंकि वो माइनस का है, तो h माइनस 2 अपॉन k और इज इक्वल टू 1. यू कैन जस्ट डू बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आफ्टर दैट कुछ बचता नहीं है, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके एच के को एक्स वाई से रिप्लेस कर देंगे. तो अगर हम बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे एलसीएम लेके, तो आप जब न्यूमरेटर को सॉल्व करो तो न्यूमरेटर में क्या वैल्यू आ जाएगी, बाई क्रॉस करोगे यहाँ से तो आएगा के स्क्वायर एंड ए प्लस बी ए माइनस बी विल बिकम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट विल बिकम एच स्क्वायर माइनस 4, करेक्ट? डिवाइडेड बाय के टाइम्स h प्लस 2 अपॉन, आप इसको मल्टीप्लाई करो एलसीएम लेकर के, तो इट विल बिकम kh प्लस 2k, इट विल बिकम kh प्लस 2k, और इसको k से मल्टीप्लाई करोगे इट विल बिकम
2k minus kh, 2k minus kh अपॉन k टाइम्स h प्लस 2 इज इक्वल टू 1। तो ध्यान दोगे तो यहाँ h प्लस टू कैंसिल हो जाएगा, kh से कैंसिल हो जाएगा, और अगर k कॉमन लेके भी कैंसिल करते हो तो यहाँ से ये वाला k इससे और इससे कैंसिल हो जाएगा। इट्स 2k एंड 2k, it's 2k and 2k. I hope if I have written correct, kh plus 2k and this is 2k, right? This is correct. And आप इस k से k into h plus 2 था, k into h plus 2 यहाँ पे भी था, right? तो चाहे तो आप इससे कैंसिल कर दो या इससे कैंसिल कर दो, both are same, right? तो इफ इट इज इक्वल टू 1, मैं डायरेक्ट बाई क्रॉस कर देती हूँ, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा k स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू k टाइम्स इज इक्वल टू k टाइम्स, यहाँ पे k से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम 4k, राइट? ये आपका k मैंने कैंसिल कर दिया था, तो यहाँ बचेगा 4, राइट? सो इक्वेशन क्या होगी, मैंने कहा था फाइनली आप h k को x y से रिप्लेस करोगे, तो h को इफ आई राइट x तो इट विल बिकम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड k को y लिख रहे हो, लेफ्ट साइड लाओगे इट विल बिकम माइनस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज योर आंसर। सो क्वेश्चन वाज नॉट difficult, somewhat calculation was there, but if you practice it's not that difficult, right? तो हमने बस स्लोप को इक्वेट किया है और उसके बाद में एक छोटी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाई है, that's it. So second question is let y is equal to x be the equation of the chord of the circle C1 in a closed half प्लेन x इज पॉजिटिव, राइट? सो कुछ ऐसा कह रहा है कि ये x पॉजिटिव प्लेन है, इसमें आपको एक y इज इक्वल टू x इक्वेशन है, लेकिन वो इक्वेशन किसकी है? कॉर्ड की, सर्कल C1। तो दिस इज योर सर्कल C1, राइट? एंड द डायमीटर ऑफ द 10 पासिंग थ्रू ओरिजिन, अब क्वेश्चन में ये भी कह दिया कि ये ओरिजिन से पास करे एंड डायमीटर इसका यही है। तो अगर इफ इट इज अ डायमीटर देन आई कैन राइट द कोऑर्डिनेट 10,0, राइट? If C2 be another circle described on the given chord, correct? Okay, तो इन्होंने chord दे रखी है, that chord is y is equal to x line. So y is equal to x line is very simple, it's just a bisector of the axis, right? So this line is y is equal to x line and y is equal to x line इस C1 सर्कल की chord है, लेकिन मुझे एक C2 सर्कल बनाना है and that C2 सर्कल में ये जो chord होगी that will be the डायमीटर, राइट? सो कुछ ऐसा सा आपका सर्कल है C2 जिसमें दिस chord of the C1 circle is acting as a diameter for the second circle, right? If the equation of the chord of the C2 which passes through, तो अब हमें इस सर्कल के कॉर्ड की, यानी कि C2 सर्कल पे एक और कॉर्ड है, उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है एंड वो कॉर्ड पास कर रही है 2,3 से एंड इट इज फारदेस्ट फ्रॉम द सेंटर C2। देखो यहाँ पे हिंट मिल गया कि हमें C2 का सेंटर चाहिए होगा और C2 के सेंटर से फारदेस्ट कॉर्ड निकालनी है, और कॉर्ड एक स्ट्रेट लाइन होती है, उसकी इक्वेशन को कंपेयर करके AB आ जाएगा और उससे फिर फाइनल आंसर आएगा, राइट? सो दिस इज द माइंड मैप we will have to frame it, right? कि how you are going to solve the question. Simple. तो first I will try to find the center of this circle. तो center of this circle is very clear, since the diameter is 10, the center will be 5,0. Center will be 5,0, right? So you can write the equation of C1. C1 की equation तो आप लिख ही सकते हो। C1 के लिए अगर मैं लिखूं तो C1 की इक्वेशन क्या आ जाएगी? इफ यू नो द सेंटर, तो इक्वेशन होती है x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। सो इट इज x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर y माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर एंड द रेडियस इज डेफिनेटली 5, उसका स्क्वायर हो जाएगा 25, राइट? सो दिस इज द इक्वेशन फॉर द C1। अब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है कि ये जो C1 सर्कल है उसको y इज इक्वल टू x कहाँ पे कट करेगा, राइट? तो इस इक्वेशन में आई विल जस्ट प्लेस x की जगह पे y, because y is equal to x is given. So x की जगह पे if you will write y here, so it will become y minus 5 whole square plus y square is equal to 25. So if you just use the whole square formula, you will get y square plus 25 minus 5 to the 10y plus y square is equal to 25, right? So you will get the value 2y square minus 10y, 25 will get cancelled out,
is equal to 0. So you can take 2 as a common, so it will become y minus 5 is equal to 0. So value of y is 5. So if the y is 5, then definitely x is also 5 because x is equal to y. So point of intersection मुझे मिल गया यहाँ पे 5,5. राइट, तो ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. तो अगर इफ इट इज अ डायमीटर एंड इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, राइट, दिस इज ओरिजिन, तो आई कैन राइट, बिकॉज डायमीटर का मिड पॉइंट विल बिकम द सेंटर, राइट. तो डायमीटर का मिड पॉइंट अगर हम निकाले, दिस पॉइंट इज 5/2, 5,5. सो ये जो पॉइंट आएगा सेंटर, दिस विल बिकम 5/2, 5/2, राइट. मिड पॉइंट यू कैन फाइंड 5 + 0/2, 5 + 0/2. तो हमें इस सर्कल का सेंटर मिल गया. बट ये मेरा फाइनल नहीं है, क्योंकि अभी हमें सेंटर नहीं चाहिए था. हमें ये चाहिए था कि ये सेंटर है. इस वाले सर्कल की एक और कॉर्ड है जो इससे फार्देस्ट डिस्टेंस पे है, उस कॉर्ड की इक्वेशन आपको चाहिए, राइट. तो इस सेंटर से फार्देस्ट डिस्टेंस पे, राइट, तो फार्देस्ट डिस्टेंस हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, तो यहाँ कोई कुछ कॉर्ड होगी, राइट, जो उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होगी, एंड दिस कॉर्ड इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3, एंड दिस कॉर्ड इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3, राइट. तो आपको करना क्या है कि इस कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी, राइट. तो C2 पे जो कॉर्ड है आपको उसकी इक्वेशन चाहिए, राइट. तो कैसे निकाल सकते हैं हम? y इज इक्वल टू x के लिए तो हम जानते हैं कि इसका स्लोप इज 1. तो इफ इट इज परपेंडिकुलर, तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा? -1. इफ इट इज एट अ फार्देस्ट, नो इट्स नॉट सेइंग, ये फार्देस्ट 2,3 से बोल रहा है, राइट. तो पहले आपको ये निकालना पड़ेगा, यहाँ पे इससे फार्देस्ट बोल रहा है, राइट, राइट. तो इट इज 2,3 से फार्देस्ट बोल रहा है. यहां से आपको इसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, पहले तो इसका स्लोप निकालना पड़ेगा. 2,3 जो पॉइंट दिया हुआ था वो 2,3 पॉइंट से फार्देस्ट, तो 2,3 और 5/2 के बीच का स्लोप निकालना पड़ेगा. किसके किसके बीच का? 2,3 और 5/2, 5/2, राइट. सो इसके बीच का अगर आप स्लोप निकालोगे तो यू विल गेट y2 - y1 अपॉन x2 - x1, यानी कि 5/2 - 3 अपॉन 5/2 - 2. सो 5/2 - 3 इज 5 - 6, यानी कि -1/2, and 5 - 4 upon 2, तो 5 - 4 upon 2, this will become 1/2, right. So it is -1, right. तो इस लाइन का स्लोप आपको -1 मिल रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर एक कॉर्ड है, राइट. दिस इज द कॉर्ड, मैं रेड से बना देती हूँ. तो इस कॉर्ड की आपको इक्वेशन चाहिए. तो अगर हमें किसी परपेंडिकुलर की इक्वेशन चाहिए होती है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, राइट. तो अगर इस लाइन का स्लोप आया है -1, तो डेफिनेटली इस लाइन का स्लोप हो जाएगा +1. तो इफ यू नो द slope and you know the point, right, so we can use the point slope form. तो point slope form से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं. The equation is y minus y1 is equal to mx minus x1. So the point was 2,3 and the slope is 1. So the equation will be y minus y1 is equal to mx minus x1, right. So if I will simplify it, I will get x राइट ले जाओ, तो x minus y is equal to x minus y plus 1 is equal to 0. X minus y plus 1 is equal to 0, right. So if I will compare this with the given equation, you can write the value of a and b. So a will be equal to -1. You can simply see this, a is equal to -1 and b is equal to 1. So if I have found the value of a and b, then हमें finally क्या करना था? हमें करना था find a minus b, right. तो a minus b चाहिए था. a is -1 and minus b is 1, so the answer is -2, right. So it's about calculation. क्वेश्चन बेसिक था, अगर आप पेन पेपर पे करोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस है तो जल्दी हो जाएगा, राइट. तो कॉन्सेप्ट सिंपल था. सर्कल है, उस पे कॉर्ड है, उस कॉर्ड पे एक और सर्कल है, उस सर्कल पे एक और कॉर्ड है, और उस कॉर्ड पे आपको पॉइंट दिया है, फिर आपको सर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है. ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन, राइट. आई थिंक वीडियो काफी लंबी हो रही है, तो 4 क्वेश्चन तक ही मैं करूंगी, बाकी इसका सेकंड पार्ट बना दूंगी, राइट. तो लेट अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 passes through the origin O and the point A and B, right. So I will just first draw the diagram. So without diagram there is nothing, visualize नहीं हो पाता है ना. This is the origin. So O is the origin. This is O, okay. And the point is -√3a, 0. Okay, left side.
So it is minus root 3a comma 0. This is the point A, and 0 comma minus root 2b, 0 comma minus root 2b, right? So this is the point B, right? तो आपको करना क्या है यहाँ पे, ये एक ट्रायंगल बन जाएगा आपका, this is AOB, right? So this is the triangle, right? तो A and B are the real parameters, so then the locus of the centroid of the triangle AOB, right? तो आपको locus निकालना है वो भी centroid का. So centroid is simple. We all know that x1 plus x2 plus x3 upon 3, y1 plus y2 plus y3 upon 3, right? तो आप इन तीनों को ऐड करके upon 3 कर दो, so you'll get the coordinate of the centroid. सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा, बाकी दोनों तो जीरो ही है, so it will you'll get minus root 3a by 3, and here बाकी दोनों जीरो है, you'll get minus root 2b by 3, right? So this is the coordinate for the centroid. तो if अगर root 3 को reduce कर लो तो ये ऐसे बन जाएगा, minus का a by root 3. तो करना क्या था, the locus of the centroid of the triangle, locus of the centroid of the सर्कल ऑफ रेडियस. तो जो इसकी जो सेंट्रॉइड है उसका मुझे लोकस निकालना है, राइट? एंड अच्छा ओके, तो सर्कल इज पासिंग, लेट द सर्कल ऑफ रेडियस 4 पासिंग थ्रू ओरिजिन ओ. ओके ओके ओके, तो सर्कल पास कर रहा है आपका इन तीनों पॉइंट से, ओरिजिन से भी, ए से भी, बी से भी, दैट मीन्स कुछ ऐसा सर्कल बन रहा है. देखो यहाँ एक चीज बहुत क्लियर है, इट्स वेरी सिंपल, कि अगर आपका ये सर्कल बन रहा है ना, क्योंकि हम पता है सेमी सर्कल का एंगल 90 डिग्री होता है, यानी कि ए बी विल बी द डायमीटर, राइट? सो क्योंकि ये एंगल 90 है, दैट मीन्स आपका ए बी क्या हो जाएगा, ये आपका डायमीटर हो जाएगा. डायमीटर अगर हो गया, रेडियस दिया है, रेडियस 4 है, तो डायमीटर कितना हो गया, 8. ये क्वेश्चन आसान था, राइट? तो यहाँ पे आपका डायमीटर अगर 8 हो गया, तो सुनो, यहाँ पे अगर डायमीटर 8 हो गया तो यू कैन जस्ट यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी, एंड उसको इक्वेट कर दो ए से, तो यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे, या फिर पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो, क्योंकि ये डिस्टेंस आपकी ए रूट 3 हो गई और ये रूट 2 भी हो गई, राइट? तो हम पाइथागोरस से भी निकाल दें, डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकाल दें, तो ये डिस्टेंस आएगी अंडर रूट ऑफ ए रूट 3 का स्क्वायर, ए रूट 3 का स्क्वायर विल बिकम 3a स्क्वायर, एंड रूट 2b का स्क्वायर, रूट 2b का स्क्वायर इट विल बिकम 2b स्क्वायर, राइट? और ये किसकी इक्वल हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू 8. तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देती हूँ यहाँ पे, तो 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 64. अब ध्यान देना यहाँ पे कि सेंट्रॉइड का लोकस चाहिए आपको, तो जिसका लोकस चाहिए होता है हम उसको क्या ले लेते हैं, h, k ले लेते हैं. तो h, k में हम एक इक्वेशन फाइंड करते हैं और वहां से हमें उसका लोकस मिल जाता है, या एक कह सकते हो उसका एक पाथ मिल जाता है. तो अगर वो पाथ सर्कल है तो वी कैन इजिली फाइंड इट्स रेडियस, राइट? तो ये तो एक सर्कल है, लेकिन मुझे उसके सेंट्रॉइड के लोकस की रेडियस चाहिए, राइट? तो ध्यान देना, इसलिए मैंने सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट को h, k ले लिया है. तो अगर इसको कंपेयर करोगे तो यहां से क्या आ रहा है, माइनस a बाई रूट 3 इज इक्वल टू h. तो a की वैल्यू आ रही है माइनस रूट 3h, करेक्ट? तो ये a की वैल्यू होगी. अगर इसको कंपेयर करते हो k से, तो k की वैल्यू आ जाएगी माइनस रूट 2b बाई 3, राइट? सो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ b इट विल बिकम 3k माइनस 3k बाई रूट 2, राइट? तो a एंड b का मुझे वैल्यू मिल गया, तो a एंड b को आई विल प्लेस इट हियर. सो 3a स्क्वायर करोगे तो इट विल बिकम 3h स्क्वायर, एंड 2b स्क्वायर करोगे यू विल गेट 9k स्क्वायर अपॉन 2. 9k स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 64, राइट? तो यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड इट विल बिकम 9h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 64. तो यहाँ एक्स वाई का कोफिशिएंट सेम है. इट मींस वेरी सिंपल कि ये सर्कल की इक्वेशन है, तो अगर हम इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में अगर इसको लिखे तो हम रेडियस निकाल लेंगे, 9 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लोगे तो ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 64 बाई 9. h k को x y से रिप्लेस कर दोगे तो बनेगी इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 64 बाई 9. तो दिस वाज 64 बाई 9. तो ये आपका किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. तो रेडियस आपकी हो जाएगी 8 बाई 3, स्क्वायर रूट ले लो इसका, तो आंसर विल बिकम 8 बाई 3, राइट? सो क्वेश्चन वाज, दिस क्वेश्चन वाज सिंपल, राइट? And next question, I think the video will be becoming very long, so I will take it in the section next topic. Okay, thank you for watching.